If you read Bhavishya Purana, it's mentioned Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 5 to 8, which speaks about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It's mentioned Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 10 to 27, talking about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as the Maliksha. Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6. Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 7. Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, verse 1 to 14. He's prophesied as Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in Rig Ved, book number 1, hymn number 13, verse number 3. In Rig Ved, book number 10, hymn number 64, verse number 3. He's mentioned Rig Ved, book number 2, hymn number 3, verse number 5. Rig Ved, book number 5, hymn number 5, verse number 2. He's also mentioned Yajur Ved, chapter number 20, verse 37. Yajur Ved, chapter number 21, verse number 31. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक किसी भी मजहबी किताब से रेफरेंस या हवाला देते हैं तो कई लोगों को ये बात हजम नहीं होती और कहने लगते हैं कि जाकिर नाइक झूठ बोलता है, उसको कुछ आता नहीं है, बस हवा में हवाले देता है। जाकिर नाइक जो रेफरेंस देता है वो गलत होते हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि जाकिर नाइक जो रेफरेंस देता है उसके नंबर्स तो ठीक होते हैं, बट वहाँ जो बात लिखी होती है वो जाकिर नाइक की बातों से मेल नहीं खाती। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सच में डॉक्टर जाकिर नाइक जो मजहबी किताबों का हवाला देते हैं वो क्या सच में गलत होते हैं। हम आज की इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक के दिए हुए कुछ रेफरेंस को क्रॉस चेक करेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। Most, if not all, most of the religions that came before Islam prophesied about coming of the last and final messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I've given a talk on Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the various world religious scriptures. I've even given a talk on Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in Hindu scriptures. I can give a talk for a few hours only on Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in Hindu scriptures. Time will not permit me to go and read. I'll just give the references. If you read the Hindu scriptures are of two types. One is Smriti, the other is Shruti. Shruti means the word of God, in which you have Vedas and the Upanishad. Smriti is the word of human being, in which you have Manusmriti, you have Ramayana, Mahabharata, epics, etc. You also have the Puranas. If you read Bhavishya Purana, it's mentioned Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 5 to 8. Alright guys, here is the reference. I'm going to pause this video for a while. Let's check the reference. Is it right or wrong? So Dr. Zakir Naik quoted the Bhavishya Purana, Parv 3, Khand 3, Adhyay 3, Shloka 5 to 8. तो चलो दोस्तों चेक करते हैं। तो दोस्तों ये है भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 5 से 27। ये रेफरेंस जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया था एकदम बिल्कुल सही है। इस रेफरेंस में बाकायदा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है। आपको सेकंड लाइन में दिख रहा होगा महामदा। महामदा मीन्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गाइस इसमें सिर्फ फ़र्क प्रोनाउंसिएशन का है। अरबिक में मोहम्मद है और संस्कृत में महामदा। अब अगर ये देखने के बावजूद भी अब हमारे किसी गैर मुस्लिम भाई को इस पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ अपने घर में रखा भविष्य पुराना उठाइए, उसमें पर्व 3 खोलिए, खंड 3 खोलिए, अध्याय 3 खोलिए और श्लोका 5 से 27 खोलकर चेक कर लीजिए। It's mentioned Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 10 to 27, talking about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as the Maliksha. सो गाइस ये वाला रेफरेंस भी वहीं से है। सेम किताब है, सेम चैप्टर है, सेम पेज है, सेम श्लोक। अब इसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलैचा कहा गया है। मलैचा यानी फॉरेनर। एक इशारा दिया गया है कि एक फॉरेनर आएंगे बोल के। अब दुनिया में थोड़े इस जैसे लोग भी है कि मलैचा का मीनिंग निकालता है नीच। नीच यानी गिरा हुआ। भाई खुद नीच है तो मीनिंग भी नीच ही निकालेगा। खैर इन्हें खुद एक ढोंगी बाबा है, इन्हें खुद अपने भक्तों के पैसों पे पल रहा, उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा और पैसे ऐंठ रहा। तो चलो गाइस देखते हैं मलैचा का मीनिंग। तो गाइस मैं अब गूगल ओपन किया हूँ। अब हम यहाँ टाइप करेंगे मलैचा मीनिंग। तो आप जब मलैचा मीनिंग टाइप करेंगे तो डायरेक्टली आपको उसका जवाब मिल जाएगा। सो ये है विकीपीडिया। देखिए दोस्तों, विकीपीडिया पर मलैचा का मीनिंग आपको फॉरेनर बता रहा। तो दोस्तों यही पता चल गया कि वो सतरामपाल कितना नीच इंसान है, खुद को बाबा बोलता नीच। He is mentioned in Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6. Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 7. So guys, now Dr. Zakir Naik quoted the Atharva Veda, book number 20, hymn number 21 and the verse number 6 to 7. So guys, here is the Atharva Veda, book number 20, hymn number 21 and the verse number 6.
तो दोस्तों जब आप अथर्ववेदा बुक नंबर 20 और हिम नंबर 21 के वर्ड 6 से लेके 9 तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जंग खंदक का वाक़या है, जब 10,000 दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों से जंग के लिए तैयार बैठे थे, तब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बिना किसी जंग के मुसलमानों को जितवा दिया था। फिर अल्लाह ताला ने एक तेज आंधी भेजी। वो आंधी ऐसी आई, झक्कर ऐसा आया कि वो लश्कर जो था उसके खेमे उड़ गए। जहां देगें चढ़ी हुई थी चूल्हों के ऊपर आग लग गई और उससे एक अफरा तफरी पैदा हुई जिसके नतीजे में वो लश्कर उन्होंने वहां से कैंप उठाया और चले गए। बाकायदा कोई बड़ी लड़ाई की कोई शक्ल पैदा ही नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ने बस इम्तिहान जो है एक शरीर मुसलमानों का ले लिया। He is also mentioned in Rigved, book number 1, chapter number 53, verse number 9. Alright guys, now Dr. Zakana referred the Rigveda book number 1, chapter 53 and the verse number 9. Let's see. So here it is. That is Rigveda book number 1, chapter 53 and the verse number 9. You can see here. The verse number 9. So with all outstripping chariot wheels, O Indra, though far famed, has overthrown the twice 10 kings of men with 60,990 followers who came in arms to fight with the friendless सुसरवास। तो दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का की जो आबादी थी वो 60,000 ही थी, लगभग 60,000 ही थी, और वो 60,000 आबादी को रूल करने के लिए 20 लीडर्स थे, 20 चीफ थे, उन लोग के अपने कबाइल थे। तो ये वाला रेफरेंस भी हूबहू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की तरफ इशारा करता है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, अभी मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के रेफरेंस चेक करेंगे। अभी बहुत कुछ है आपसे शेयर करने के लिए, अभी बहुत सारे रेफरेंस है। हम अगर रेफरेंस चेक करने बैठ जाएंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आप कई घंटे लगेंगे हमको, इतने सारे रेफरेंस है। तो इसीलिए दोस्तों हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके सामने और भी इसके पार्ट्स लेकर आए और सारे रेफरेंस चेक करें ताकि कोई शुबा ना रहे। तो इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और भी बहुत सारे रेफरेंस आपको बताने हैं, शेयर करने हैं। यकीन मानिए आप बहुत सारे रेफरेंस है, जैसे कि ये He is mentioned as Ahmad, which means one who praises in Uttar Chik, mantra number 1500. It's mentioned in Indra, chapter number 2, verse number 152. Yajurved, chapter number 31, verse number 18. He's also mentioned in Atharvaved, book number 20, hymn number 126, verse number 1 to 14. He is called as Narashansa. Nar means man, person. Shansa means coming from Prashansa, praiseworthy. A man who's praiseworthy. If you translate Narashansa, man who's praiseworthy, into Arabic, it means Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He's prophesied as Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Rigved, book number 1, hymn number 13, verse number 3. In Rigved, book number 10, hymn number 64, verse number 3. He's mentioned Rigved, book number 2, hymn number 3, verse number 5. Rigved, book number 5, hymn number 5, verse number 2. He's also mentioned Yajurved, chapter number 20, verse 37. Yajurved, chapter number 21, verse number 31. I can go on and on and on, mentioning only the references of Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in the scriptures. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फ्यूचर में इसके नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा और हम चेक करेंगे बाकी के जो रेफरेंस थे बचे हुए सब चेक करेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।